Hello everyone, welcome back to my channel Biology Planet. Students, today we will discuss the chapter Nutrition in Animals. Students, we have already discussed about nutrition in plants, in which we have studied how plants obtain their food. In this topic, we will study how different animals obtain their food. Though we know स्टूडेंट्स, अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से कंपेयर करें, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, जैसे चेयर, टेबल, पेन, राइट। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अगर एग्जांपल ले रहे हैं तो काउ, गोट, राइट। इन सारे ऑर्गेनिजम्स के अगर हमने एग्जांपल्स लिए तो हाउ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्या नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं? क्या नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को न्यूट्रिशन की जरूरत होती है? क्या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं? या फिर क्या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर करते हैं? कुछ भी नहीं करते हैं ये। उन्हें किसी भी चीज, उन्हें किसी भी जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए हम ले जाते हैं, ना कि वो खुद मूव कर सकते हैं। उसी जगह पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, they move from one place to another place, they do respiration, they show reproduction, they show control and coordination, they show excretion. Means living organisms show number of life processes. Life processes के बारे में आप क्लास 10 में और डिटेल्स में पढ़ेंगे. So living organisms show number of life processes just like nutrition, respiration, reproduction, right? So to perform all these life processes, living organism need energy. Suppose if I'm asking you to run for 10 kilometers, you can easily run. And if I ask you again to run for 10 kilometers, you will feel a little bit tired. आप थका हुआ महसूस करेंगे, क्यों? Because जो भी एनर्जी आपकी बॉडी में थी वो खत्म हो चुकी है, और आगे के लिए रन करने के लिए आपको क्या चाहिए? You need more energy. Then from where you get this energy? You will get this energy from nutrition. Okay? So whatever the food we eat to get energy, that is called nutrition. In simple terms we can say nutrition क्या होता है? Nutrition is the process in which we obtain food and this food is changes into the simpler substances, that is known as nutrition. अभी in this chapter we are going to study about nutrition in amoeba, nutrition in grass eating animals and nutrition in human beings. Because all these types of animals, all these types of organisms are different from each other. If we talk about nutrition in amoeba, amoeba is a unicellular organism. Because it is unicellular, so this organism is made up of single cell. That is why all the functions of its body will be performed by a single cell. Right? ग्रास ईटिंग एनिमल्स की बात करें तो ग्रास ईटिंग एनिमल्स ग्रास कंज्यूम करते हैं, और हमें पता है द सेल वॉल ऑफ ग्रास, द ग्रीन प्लांट्स इन द ग्रास इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, जिसको डाइजेस्ट करने के लिए स्पेशल एंजाइम्स की, बैक्टीरिया की जरूरत होती है. दैट इज व्हाई दे हैव द स्पेशल डाइजेस्टिव सिस्टम. तो इसलिए हम न्यूट्रिशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स के बारे में अलग से पढ़ेंगे. और ह्यूमन बींग्स के बारे में बात करते हैं तो वी नो दैट ह्यूमन बींग्स आर द मोस्ट एडवांस्ड kind of organism. So obviously the digestive system, the nutrition in the human beings will also be a advanced kind of, right? तो चलिए डिस्कस करते हैं न्यूट्रिशन के बारे में. सबसे पहले what is nutrition? Okay, so nutrition, it is a process. It is a process of obtaining food and changing it into simple substances.
Right, students? What is nutrition? Nutrition is the process of obtaining food and changing it into simple substances. Because nutrition के फॉर्म में, फूड के फॉर्म में तो हम बहुत सारी चीजें खाते हैं. हम सैंडविचेस खाते हैं, हम चपातीस खाते हैं, हम दालें खाते हैं, हम राइस खाते हैं, बहुत सारी चीजें हम खाते हैं. एंड ये जितने भी चीजें हम खाते हैं, सबका जो न्यूट्रिएंट, इन सब में डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं. और इन फूड को हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब करना इन द सेम फॉर्म इज नॉट पॉसिबल. तो ये सारे फूड हमारी बॉडी में जब डाइजेस्ट होते हैं, डाइजेस्ट होने के बाद में ये सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, फिर हमारी बॉडी में ये एब्जॉर्ब होते हैं. राइट? तो हियर आई हैव टेकन अ वर्ड दैट इज न्यूट्रिएंट्स. व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? अगर हम न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो न्यूट्रिएंट्स आर chemical substances which are required for growth and development of our body. Right? So न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स आर केमिकल सब्सटेंसेस विच आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी. न्यूट्रिएंट्स बहुत ही सिंपल सब्सटेंसेस होते हैं. जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि हम डिफरेंट डिफरेंट चीजें खाते हैं. हम राइस खाते हैं, चपातीस खाते हैं, पल्सेस खाते हैं, बहुत सारी चीजें हम खाते हैं. तो इन सारी चीजों में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं. जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, fats, proteins, right? Minerals, vitamins. ये सारे क्या है? They all are nutrients which are required for proper functioning of our body. Okay, students? So nutrition क्या होता है? Nutrition it is the process of obtaining food and changing it into simple substances. और nutrition हमें मिलता कहाँ से? Nutrition हमें food से मिलता है which contains nutrients. ये nutrients हमें क्या प्रोवाइड कराते हैं? नरिश करते हैं हमारी बॉडी को, नरिशमेंट प्रोवाइड कराते हैं. ओके, अब हम डिस्कस करते हैं कि why this nutrition is important for our body. न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? Why there is a need of nutrition. Okay. So न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन की, तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि दैट द फूड, व्हाटएवर द फूड वी ईट, वी दैट प्रोवाइड अस एनर्जी. तो वी कैन से दैट इट प्रोवाइड्स as energy. And students, we know that without energy we cannot perform any of the function. कोई भी हमारी बॉडी का कोई पार्ट फंक्शन नहीं कर पाएगा. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो it also helps in regenerating cells. राइट? न्यूट्रिशन से हमारी बॉडी की बॉडी बिल्डिंग भी होती है, हमारी सेल्स की रीजनरेशन होती है, हमारी सेल्स की रिपेयरिंग होती है. ओके, सो वी कैन ऑल्सो से दैट इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिपेयरिंग ऑफ द सेल्स. जब हमें कभी चोट लग जाती है, हमें कोई बाउंड होता है या फिर किसी तरीके से फ्रैक्चर हो जाता है, एक कोई अदर डिसीज होती है, तो इन सारे केसेस में न्यूट्रिशन बहुत अहम रोल प्ले करता है. जैसे जब कभी आप बीमार होते हो, जब कभी आप अच्छा नहीं फील करते हो, तो मम्मी बोलती हैं मिल्क पी लो, जूस पी लो, फ्रूट्स खा लो. ऐसा क्यों बोलती है मम्मी? ऐसा क्यों बोलते हैं डॉक्टर्स कि जब हम बीमार हैं या फिर जब व्हेन वी आर नॉट फीलिंग वेल, तो हमें फ्रूट्स खाने चाहिए, हमें हेल्दी चीजें खानी चाहिए. Because all these healthy things, all these healthy fruits, vegetables contains number of nutrients which gives us energy to fight against number of diseases. तो एक चीज और यहाँ पे क्लियर होगी, it helps us to protect from diseases. Right? It also helps us to protect from diseases. It also provide resistance from diseases, and it also helps in different
life processes. Right, students? So nutrition is also very important to perform all the life processes such as like respiration, reproduction, excretion. So this is how we came to know that what is the importance of nutrition. Okay, students, and for further updates, just subscribe my channel. Thank you.